Good morning, students. Today we will do exercise 1.5. Before doing this exercise, you should be having a clear knowledge about rational numbers and irrational numbers. First of all, let's have a quick review about rational and irrational numbers. Rational numbers. Rational numbers are the numbers in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. For example, 0, minus 2, 3 by 4, 22 by 7, minus 3 by 5, etc. These are rational numbers. Now come to irrational numbers. The numbers which are not rational are called irrational numbers. For example, root 2, root 7, root 9 equals to 3. This is not an irrational number. Then 1.23, 233, 233, 2, 0.47, 477, 477, etc. etc. Then important irrational number pi. So such numbers are irrational number. Root 9 is not an irrational number because root 9 equals to 3, which is a rational number. Let's look at this table. Rational plus irrational equal to irrational. Rational minus irrational equal to irrational. Rational divided by irrational equals to irrational. Rational multiply irrational equal to irrational. इन दो केसेस में जीरो इज एन एक्सेप्शनल केस. जीरो इज एन एक्सेप्शनल केस. तो जीरो को छोड़ के ये सारे फैक्ट्स ट्रू हैं. नाउ we will start in exercise 1.5. So let's start sum number 1. Classify the following numbers as rational or irrational. First is 2 minus root 5. Now 2 is rational, root 5 is irrational, and I had told you that rational minus irrational is irrational. Therefore 2 minus root 5 is irrational. And if you want to tell the reason, you can say, you can write rational minus irrational equals to irrational. Now 3 plus root 23 minus root 23. This is 3 and 3 is rational. Which is rational? 2 root 7 upon root 7. 2 into root 7 divided by root 7. Root 7 is cancelled with root 7. So answer is 2, which is rational. One upon root 2. 1 is rational. Root 2 is irrational. Rational divided by irrational is irrational. Then 2 pi. 2 is rational, pi is irrational. So rational multiply irrational equals to irrational. 2 root pi is irrational. Irrational. And the reason is rational multiply irrational is irrational. Let's start question number 2. Simplify each of the following expressions. And the first part is 3 plus root 3 into 2 plus root 2. So first of all,
हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस ब्रैकेट के दो टुकड़े कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट से, फिर हम इसका दूसरा टुकड़ा लेते हैं, दैट इज +√3। ये प्लस का सिंबल लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप यहाँ प्लस का सिंबल नहीं लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो +√3 इंटू 2 + √2। तो दिस इज द वे यू विल स्टार्ट द सम। नाउ 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 6। 3 इंटू √2, 3 is rational, √2 is irrational. So 3 into √2 is 3√2. Now √3 into 2, it will be 2√3. If you multiply √3 with 2, you will get 2√3. Now multiply √3 by √2. So √3 into √2 is √6. √3 into √2 is √6. अब देखो आप, रैशनल से ऐड होगा और इरैशनल नंबर तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके रेडिकल साइन एक जैसे हो, सॉरी जब इनके रूट वाले नंबर एक जैसे हो। तो 3√2, 2√3 ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। 3√2 में कोई भी नंबर जिसके साथ √2 हो वही ऐड हो सकता है। इसी तरह से 2√3, √6 ये भी ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें √3 है, इसमें √6 है। रूट में सेम नंबर हो तो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकते। तो अब हम देखते हैं, रैशनल नंबर सिर्फ एक है, ये सारे इरैशनल नंबर है, इनके रेडिकल साइन डिफरेंट, रेडिकल साइन में डिफरेंट नंबर्स हैं, √2, √3, √6 ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो यही आंसर है, दिस इज द आंसर। Let's do part number 2. 3 plus √3 into 3 minus √3. देखें, दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर्स हैं, बस बीच का सिंबल अलग है। 3 √3, 3 √3। फर्स्ट ब्रैकेट में बीच में प्लस का सिंबल है, सेकंड ब्रैकेट में बीच में माइनस का सिंबल है। इट मीन्स एक आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, और इसका आंसर होता है a² - b²। तो यहां पर a + b, a - b, 3 is acting as a and √3 is acting as b, so answer will be a² - b². Square of 3 is 9 and square of √3 is 3. जब हम किसी रेडिकल साइन वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये रेडिकल साइन हट जाएगा, तो √3 का स्क्वायर बन गया 3। 9 - 3 is 6. This is the answer. Let's do part number 3. It is whole square of √5 plus √2. Again, an identity is applicable here. At this time, identity applicable is whole square of a plus b, and its answer is a² plus b² plus 2ab. So we will be using the identity whole square of a plus b. √5 is acting as a and √2 is acting as b. So first of all, a², that means square of √5, plus b² means square of √2 plus 2ab. a means √5 and b means √2. तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर ऑफ √5 is 5, स्क्वायर ऑफ √2 is 2. इसमें देखो आप, बिना रूट वाला नंबर बिना रूट से मल्टीप्लाई होता है, रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है। रूट वाला रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा, बिना रूट वाला बिना रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो √5 इंटू √2 √10, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √10, 2 इनसे अलग रहेगा, तो 2 इंटू √10. नाउ 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 √10.
7 रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो दिस इज द आंसर. Let's do the next sum. Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. That is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? जब हम स्केल के साथ या जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं उनसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस या डायमीटर मापते हैं तो हमारे को एक अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू मिलती है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती. वास्तव में या तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस या डायमीटर दोनों में से एक चीज़ इरैशनल होती है जो हमें हमारे वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे हम इनको माप नहीं सकते अच्छी तरह से. एक्चुअल में either C or D is irrational. That is why pi is irrational. So you can write, it doesn't contradict the fact that pi is irrational. When we measure the length with a scale or any other device, we only obtain an approximate rational value, but not the exact value. Accordingly, we may not realize which one, either C or D, is irrational. So pi is irrational. Let's do the next sum. Represent root 9.3 on the number line. ये सम आपको ज्योमेट्री बॉक्स की हेल्प से करना है, स्केल कंपास वगैरह का यूज करके करना है आपको. तो देखें इसका क्या तरीका है. सबसे पहले आप एक लाइन खींच लें. ये हमने लाइन खींच ली जिसका नाम हमने रख दिया L. आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माने तो हमारा स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा. तो सबसे पहले आप क्या करें, जितना यूनिट दे रखा है 9.3, आप उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा लें, 10.3 लें. अगर ये 7.5 होता तो आप 8.5 लेते हैं, 8.2 होता तो 9.2 लेते हैं. आपको 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है. तो मैं यहाँ से 0 और यहाँ पर मेरा बनता है 10.3. जहाँ पे 9.3 बनता है वहाँ भी आप एक मार्क लगाएंगे. अब OA हमारा 9.3 यूनिट्स है और OB हमारा 10.3 यूनिट्स है. OA इज 9.3, OB इज 10.3. आप स्केल से माप लें, OA आपका 9.3 और OB आपका 10.3 यूनिट होना चाहिए. आप शो भी कर सकते हो. ये हो गया 9.3 और ये हमारा हो गया 10.3. अब आप OB का मिड पॉइंट ढूंढिए. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ OB यूजिंग योर कंपास. OB के आधे से ज़्यादा कंपास खोलेंगे. 10.3 के आधे से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऊपर लगेगी, एक आर्क नीचे O से रख के लगाइए. फिर आप B पर कंपास रख के आर्क लगाओ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे. ये हम क्या कर रहे हैं, OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच रहे हैं. क्या तरीका है, ये जैसे OB है, आप O पर कंपास रखो, OB के आधे से ज़्यादा खोलो, एक आर्क लगाई O से, उतनी ही कंपास खुली रखो, B पर रखो, दूसरी आर्क लगाओ जहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो हमने सिर्फ एक आर्क ऊपर कटती हुई दिखे, ये आपने हिस्सा हटा देना है, और एक नीचे कटती हुई दिखे, तो ये हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया और ये हमारा मिड पॉइंट आ गया L. OB का मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर L. अब आप L पे कंपास रखो, O जितनी खोलो और एक आर्क लगाओ. आपने कंपास L पर रखनी है, O जितनी खोलनी है और एक आर्क लगानी है. विद सेंटर L एंड रेडियस LO, ड्रा एन आर्क एंड द आर्क विल टच द पॉइंट B. इसके बाद आप क्या करोगे,
डी से प्रोटेक्टर से ए पर परपेंडिकुलर ड्रा करो। ए पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। जहां भी ये इस आर्क को परपेंडिकुलर काटता है उस पॉइंट का नाम हम रखते हैं सी। आपने क्या किया, प्रोटेक्टर से ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। What you have done? You have drawn a perpendicular from point A to L। और जहां भी ये परपेंडिकुलर इस आर्क को टच करता है उस पॉइंट का नाम रख दिया सी। अब आप क्या करेंगे, ए पर कंपास रखेंगे, सी जितनी खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ए पर कंपास रखी, सी जितनी खोल के एक आर्क लगाएंगे। यहाँ कंपास रखी और इतनी रख के आर्क लगाई। जहां भी ये आर्क एल को टच करती है उस पॉइंट का नाम हमने डी रख दिया। With center A and radius AC, draw an arc to cut L at point D। अब अगर आप A को 0 मानते हैं, then AD equals to √9.3 on L। तो AD रिप्रेजेंट करेगा आपका √9.3 अगर आप A से स्टार्ट करते हैं तो। Let's do sum number 5। Rationalize the denominators of the following। इसमें आपको ध्यान रखना है, हमने डिनोमिनेटर को देखना है। नीचे 1 टर्म्स हैं या 2 टर्म्स हैं। अगर नीचे 1 टर्म है तो सम बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम ऐसे सम देखते हैं जिनके नीचे सिर्फ 1 टर्म हो। तो 1/√7, इसको हम लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नीचे √7 है। जब नीचे वाला रूट हट जाए तो हम कहेंगे कि रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो डिनोमिनेटर में √7 है। √7 को किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका रेडिकल साइन हट जाए, इसका रूट हट जाए, तो वो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करने से रूट हटेगा नीचे, इसलिए हम इसको √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई किया √7 और √7 को √7 से मल्टीप्लाई किया 7। तो नीचे रूट हट गया। नीचे रूट हटने का मतलब ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। तो नीचे 1 टर्म हो तो बहुत सिंपल है, नीचे किस से मल्टीप्लाई करने से नीचे वाला रूट हटेगा, उसी नंबर से आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब अगर नीचे 2 टर्म्स हैं, यहां पर हम देखते हैं नीचे 2 टर्म्स हैं, तो फिर वही लिखेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। नीचे 2 टर्म्स हो तो उनके बीच का सिंबल चेंज करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। नीचे 2 टर्म्स हैं, उनके बीच का सिंबल चेंज करना है। इन दोनों के बीच में सिंबल है माइनस, सिंबल चेंज कर देंगे तो हो जाएगा प्लस। तो √7 प्लस √6 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस √6 से आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो बहुत आसान तरीका है। अगर नीचे 2 टर्म्स हो तो बीच का सिंबल चेंज करोगे। बीच में माइनस था तो माइनस को चेंज किया प्लस, और जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। नीचे आइडेंटिटी a माइनस b इंटू a प्लस b, तो दैट इज a² माइनस b²। अगर नीचे 2 टर्म्स हैं तो हमेशा नीचे एक ही आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b²। तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे स्क्वायर ऑफ √7 इज 7 माइनस स्क्वायर ऑफ √6 इज 6। 7 माइनस 6 इज 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द आंसर। So you can do rest of the parts like this.